So hey guys, welcome back. I hope you are doing well and good with your studies also. घर बैठ के वैसे भी अभी स्टडीज़ ही तो करना है, आपको खेलने भी तो मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे होंगे, तो कम से कम स्टडीज़ को ही अच्छे से कर लेते हैं ना। तो लास्ट सेशन में हमने एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग के सेशन में हमने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड है, दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, गिव एंड टेक का रिलेशन है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रीफिंग करते हुए मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक रिकॉल करा देती हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं कोवैलेंट में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अ स्मॉल ब्रीफिंग फॉर दिस, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, राइट। To this sodium, it loses one electron and hence forming Na plus ion. In the same way, you can say chlorine, ठीक है, it gains one electron and forms Cn minus ion, ठीक है। So whenever there is a loss of electron, you write it in the product side, ठीक है। Whenever there is a gain of electron, you write it in the reactant side. So gain of electron, ठीक है। And when these two oppositely charged ions are formed, sodium, which is positively charged, and chlorine, which is negatively charged, get attracted to each other with help of electrostatic force of attraction, right? Force of attraction, and this attraction is nothing but your electrovalent or ionic bond, which we have seen in the earlier session. So in the earlier session we also have mentioned one very important definition, that is bond. It is a force of attraction, some attractive force, ठीक है, force of attraction between two atoms, ठीक है, and that force can be of electrostatic kind or covalent kind. So this was what we have seen in the earlier session. I hope you are having no doubt, ठीक है। If you have, you must have asked me and you should ask me, ठीक है। Once everything is clear, we can move to the next type of bond, and that is the covalent bond, ठीक है। So let's do that. Covalent bond. Covalent. Co word you might have heard, like cooperation, cooperatives, coordinate, huh? Coordinate. Many places you use this word co. Co means आपके साथ के, ठीक है, उन सभी का, जैसे आपके साथ आपके जो फ्रेंड्स है, they are also students. When they cooperate or coordinate, you can make a very good group project, right? In the same way, यहाँ पर भी जब हम co की बात कर रहे हैं, co means सैटिस्फाइंग और शेयरिंग, जैसे यहाँ पे आप शेयर करते हो, बिल्कुल वैसे ही शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहने का सिंपल मतलब क्या है, जब हम को वर्ड यूज करते हैं
तो शेयरिंग ऑटोमेटिक्स का हो, ठीक है। सिमिलरली इन दिस टू वर्ड एज सेम एज दिस टू वर्ड्स, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आप अपने आप से करते हो क्या? नहीं। जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो आप मुझे कोऑर्डिनेट करोगे, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे, तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। यू कोऑपरेट मी, तो कोऑपरेट मतलब साथ मिलके, शेयरिंग करके, so that is what is covalent bond. That's it, easy to remember, right? So covalent bond you can say is nothing but a bond made by sharing of electrons, ठीक है। So sharing of which electron? The name itself suggests that is the valence electron, ठीक है। So we will simply write it, ठीक है, write the definition to it. What is a covalent bond? Covalent bond, it is formed by sharing of pair of electron of which each electron comes from the two bonding atoms. ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर टू एलिमेंट्स E and A, और बेटा वी टेक वन प्रॉपर एग्जाम्पल, राइट। सो वन वेरी गुड एग्जाम्पल विल बी योर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। अब ये जो H2 मॉलिक्यूल है इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड ईच एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट आपको भी पता है, हमने वेरी स्टार्ट में ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन ऑलवेज सैटिस्फाइज इट्स हाइड्रोजन ऑलवेज satisfies its duplet, यानी इसके पास एक ही शेल है तो उस एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इसमें दो इसमें। अब दो ये लोग ला नहीं सकते तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, तो इनका बॉन्ड ऐसा हो जाता है। सो कैन यू सी, इस शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दिस इज नथिंग बट शेयरिंग, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज नथिंग बट ए कोवेलेंट बॉन्ड। बट क्या आपने नोटिस किया, मैंने H2 लिया, मैंने पिछली बार तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक एग्जांपल दिया था, तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थोड़ा हम उसे भी समझते हैं एंड देन विल राइट द फर्स्ट पॉइंट। तो ये एग्जांपल आप लिख लीजिए और इसके बाद विल राइट द पॉइंट, ठीक है। सो the next thing which we should know is the point, and that point is your electronegativity. These bonds can be polar or non-polar, polar or non-polar. How we can say something is polar or something is non-polar? See, एक एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन गैस का है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल
I can take is of carbon monoxide. So in this you can say कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो ज्यादा है. See, oxygen is more electronegative. So firstly we should understand what is electronegativity. So I'll just give here the definition of electronegativity. Electronegativity is a property which represents the tendency to attract electron, attract you can say gain, ठीक है, gain electron, ठीक है. So in this case I have already shown you कि जो ऑक्सीजन है इसका जो आउटर शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So just taking the example here, oxygen atomic number 8, its configuration is 2,6. तो only 2 electrons required to complete its octet. Whereas when you say carbon, its configuration is 2,4. How many electron is required to complete its octet? It is 4. तो जब भी ऐसा हो कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके बॉन्ड बन सकता है, तो द प्रॉब्लम कम्स ओवर हियर इज कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा कार्बन, उतना ज़्यादा एनर्जी इनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से जो पर्पस था मॉलिक्यूल बनाने का, दैट इज द स्टेबिलिटी, वो बचेगा नहीं. एंड जिसके चलते कार्बन को बाय डिफॉल्ट कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, और इसीलिए वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट. पर जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं पोलैरिटी के बारे में, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा पोलर है या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए हल्का सा नेगेटिव होगा, और कार्बन हल्का सा पॉजिटिव. तो दिस इज नथिंग बट पोलैरिटी, बट इससे कोई फर्क खास पड़ता नहीं. तो ठीक है, इफ यू वांट आई जस्ट रिमूव दिस, ठीक है. तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर पोलैरिटी के भी आते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है, फाइन. सो कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स को आप ये कह सकते हो कोवलेंट बॉन्ड्स विथ आयनिक कैरेक्टर, विच यू कैन सी इन लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स. बट फिलहाल आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं और इसका इफेक्ट पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी पे कैसे आता है, ठीक है. यहाँ पे दोनों एटम सेम है, तो क्योंकि दोनों एटम सेम है, ऑब्वियसली बात है पोलैरिटी की तो बात ही नहीं आएगी, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. क्लियर है. अब ये पॉइंट समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए, जो कार्बन से ही हम लेंगे तो बहुत बेटर होगा, सो दैट वो इजी अंडरस्टैंडिंग होता है, वो इजीली आ जाए, ठीक है. तो कोवलेंट बॉन्ड समझने के लिए एकदम सिंपल मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ठीक है. simplest molecule CH4. I am taking it as an example, and this is nothing but methane. This is methane, ठीक है. So CH4 is nothing but methane. ये जो मीथेन है ये बना है कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड से, ठीक है.
पर ये कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। होता क्या है कि मैं यहाँ लिख देती हूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर और उसका कॉन्फ़िगरेशन, सेम वे में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन? अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिला तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि शेयरिंग कर लेते हैं। सी इलेक्ट्रॉन्स, इतने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना is not that easy, and that is why these carbon atoms make covalent bond, that is by sharing of electrons, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ठीक है। इन द सेम वे हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन and hydrogen. Here you can see the shells of hydrogen. Can you see? यहाँ पे चारों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, राइट, कंप्लीटेड। नाउ व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन का भी अगर आप देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीटेड, हेंस द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी इज सर्व्ड, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली डन बाय कार्बन। और ऐसा क्यों होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है गेन करने के, ये गेन करो या लॉस करो, दोनों ही कंडीशन में कार्बन की बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस या गेन होगी। इस वजह से इंस्टेड ऑफ गेनिंग और लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या करता है? शेयरिंग प्रेफर करता है, एंड हेंस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। यू कैन टेक enormous examples of carbon and do the practice, ठीक है। एक खास प्रॉपर्टीज है, 2 खास प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाले इस कार्बन की, जो हम इधर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, और उसको और फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। Few properties, basically 2 properties. Carbon is a very special element, and this speciality is because कि कार्बन, आप देखोगे there are n number of articles, you can just move around and check in your room itself, you'll find except metals, everything around you is made of carbon. The paint, the board, the duster, the pen, everything, even you yourself is made of carbon. And this carbon is basically responsible, this carbon has 2 property which is basically responsible for so much of compound. The very first property is tetravalency, ठीक है। As we have seen, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी है, एंड दैट इज नथिंग बट नोन एज टेट्रावैलेंसी, ठीक है। सो आई राइट हियर इट इज नथिंग बट वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। द सेकेंड वन इज कैटिनेशन, catenation is also termed as self combination, this self combination means
कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड, दिस कैन गो अप टू n नंबर, एंड दैट इज व्हाई these two properties are very important as point of view of making of different compounds. The plastics, the paints, everything which you can see is basically made up of carbon. And इतने सारे मतलब कंपाउंड्स होने के पीछे डेफिनेटली कोई रीज़न होना चाहिए, है ना? तो वही ये दो रीजन्स हैं, ठीक है? इसके बारे में इन डेप्थ हम पढ़ेंगे इन दी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? सो लेट अस जस्ट क्विकली सी व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ. सी, I'll just give you a recap from the first session. In the first session what we have seen the bond कि ये कैसे बनते हैं, इसका पर्पस क्या है, स्टेबिलिटी एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फिर उससे एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने से एनर्जी का क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होने से एनर्जी का क्या डिफरेंस आता है. तो एवरीथिंग इन दैट वी हैव सीन, ठीक है, विद अ प्रॉपर बार ग्राफ, नॉट बार ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी का कम होना और फोर्स ऑफ रिपल्शन से एनर्जी का बढ़ जाना, ठीक है, दोनों हमने देखा है. उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो दो तरह के हैं. पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड्स बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करो, खुद को पॉजिटिव चार्ज करो, या गेन करो, खुद को नेगेटिव चार्ज करो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाओ. कोवैलेंट में क्या होता है, कोवैलेंट में कोऑपरेशन होता है, यानी कि शेयरिंग होती है और शेयरिंग से बॉन्ड्स बनते हैं. फिर हमने देखा, उसको समझने के लिए मीथेन का हमने एग्जाम्पल लिया और ये एग्जाम्पल आई थिंक वाज सफिशिएंट. फिर हमने देखा कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो इतना सारा कंपाउंड बनाता है. दिस वाज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट, विच वी आर गोइंग टू स्टडी एनी हाउ, ठीक है? तो ये सब कुछ अब तक हमने देख चुका है, ठीक है? नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कीप ऑन रिवाइजिंग, बिकॉज केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है ये, ठीक है? So I hope this is very clear to you and thorough basically. If at all not, please revise it. Try to fetch doubt, as I always said कि किसी महान पुरुष ने कहा है कि इस दुनिया का wisest person is having a lot of doubts and the dumbest person have no doubt. So better become a wise person. Try to fetch a lot of doubt out of it. कुछ ऐसे एग्जाम्पल कुछ तो ढूंढो, पूछो, तो आई हेल्प यू विद दैट. एंड देन आपके भी बहुत सारे नॉलेज में एडिशन होता जाएगा, ठीक है? सो विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय.